Welcome to all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Our subject is Bifocal Computer Science, Paper 1. Class is 12 Science. Topic is Chapter 4, HTML, Part 4 by Aditi Patil. However, we have learned what is the structure of HTML, what is the tag of HTML, and how to insert that tag in HTML. Right? So today we will learn what is the list in HTML. So HTML list allow the web developer to group a set of related items in list. The list of HTMLs allow to give the content in sequential order. इसका मतलब जो भी हमारे कंटेंट है HTML में हम जो लिख रहे हैं, अगर उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर हमको देना है तो there we are using list. So list is a list of term with a description of each term. Right? So we will see here what is the syntax of list. First we have to write the order list in between the angle bracket. Then after that we have to write the type. Then we have to use the equal to sign and then we have to give the attribute. तो इस तरीके से हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे जिसमें हम अगर ऑर्डर लिस्ट लेना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट लेना चाहते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे एंड देन उसके बाद वी हैव टू राइट द टाइप. आफ्टर राइटिंग दिस वी हैव टू राइट द लीस्ट आइटम. अगर हमको कंटेन लेना है तो देयर वी हैव टू राइट द लीस्ट आइटम. देन वी हैव टू क्लोज द लीस्ट आइटम आल्सो. So like this we have to take a number of list item in your order list or unorder list, and after completing this list then we have to close our order list and unorder list. So this is our syntax where we have to write the order list tag or unorder list tag. We will see here next. Now we will see here how many types of the list here. So there are three types of list: order list, unorder list and the definition list. In order list means वहाँ पे जो हमारी लिस्ट होती it is in a sequential order, and that sequential order means it comes in numbers, alphabet, Roman number. Like this we can use a sequential order जिसमें हम जो ऑर्डर देंगे वो sequentially देंगे और जिसमें हम नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, रोमन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में स्मॉल अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं. So this is called the order list. Next is the unorder list. In unorder list there is the list, but यहाँ पे जो list रहेगा वहाँ पे order list नहीं रहेगा. मतलब वहाँ पे हम लोग नंबर नहीं लेंगे. जो list रहेगी वो sequential order में रहेगी, but वहाँ पे हम लोग ले सकते हैं bullets. अब वो जो bullets है वो किस फॉर्म में रहेंगे? वो सर्कल फॉर्म में रह सकता है, आपके स्क्वायर फॉर्म में रह सकता है या डॉट फॉर्म में रह सकता है. ठीक है, तो कंटेंट तो लिस्ट वाइज रहेंगे बट उसमें अनऑर्डर लिस्ट रहेंगे, मतलब उसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट ये सब चीज़ें नहीं रहेगी. द नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट में हमारे जो कंटेंट है वो हम कंटेंट तो लेंगे बट जो अगर आपका सब कंटेंट है बाय यूजिंग द डेफिनेशन लिस्ट ऑल्सो इट इज़ सेट. मतलब अगर आप डेफिनेशन लिस्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको सब कंटेंट लेना है तो जस्ट वी हैव टू राइट द डेफिनेशन लिस्ट. Right? So like this we have to take the order list, unorder list and the definition list. Now we will see the example of order list, unorder list and the definition list. First we will see the what is the use of order list. Order list is created by using the OL tag and it comes in two pairs. First we have to open the order tag and then by using the backslash we have to end the order tag. जिसमें टाइप्स होते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, नंबर्स जिसमें 1 2 3 अप टू जितने भी हमको नंबर्स लेना है वो नंबर्स ले सकते हैं. देन रोमन आई मीन्स कैपिटल आई एंड देन रोमन नंबर्स. तो इस तरीके से टाइप्स जो है हम ऑर्डर लिस्ट में ले सकते हैं. राइट. देन उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू राइट द OL टैग. जिस तरीके से हमने ये जो सिंटेक्स देखा था कि सिंटेक्स में क्या होता है कि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फॉर्मूला, मतलब जो टैग है वो किस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे. तो हमारे सिंटेक्स में हमने जैसे देखा है फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑर्डर लिस्ट एंड देन वी हैव टू राइट द टाइप एंड देन एट्रीब्यूट्स. तो वही हमने जो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में. फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑर्डर लिस्ट जिसका टैग है OL. उसके बाद हमको टाइप लेना है. टाइप मीन्स एट्रीब्यूट.
जो हमारे पास 5 तरह के एट्रीब्यूट है, जिसमें हम अल्फ़ाबेट ए, स्मॉल ए, 1 नंबर, कैपिटल I एंड रोमन नंबर ले सकते हैं. सो आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द टाइप एट्रीब्यूट इक्वल टू, देन वी हैव टू टेक द एट्रीब्यूट. तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट. उसके बाद हमको कंटेंट्स भी उसमें डालना है, किसमें? ऑर्डर लिस्ट में. तो वो डायरेक्टली हम लोग नहीं डाल सकते, तो देयर ऑल्सो वी आर यूजिंग अ टैग एंड दैट नेम इज लीस्ट आइटम. तो उसका टैग होता है li. उसको भी हम फर्स्ट वी हैव टू ओपन द li, मीन्स फर्स्ट वी हैव टू ओपन द लीस्ट आइटम, देन वी हैव टू राइट द कंटेंट. यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है रेड, एंड देन वी हैव टू क्लोज द लीस्ट आइटम. सो बैक स्लैश दे के हम लोग लिस्ट आइटम को क्लोज किया. तो इस तरीके से आपको जितने भी कंटेंट चाहिए आप लिस्ट आइटम में दे सकते हो. तो यहाँ पे हमने 3 कंटेंट लिया है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और जिसमें हमने लिस्ट आइटम में ही डाला है. देन आफ्टर completing the list item, then we have to close your order list. तो बाद में हमने order list को जो है वो close किया है. So this is the example of order list. Next we will see the example of an order list. An order list is created by using the UL tag. Again it comes in pairs. जो first pair होता है वो open tag होता है, and second one is the क्लोज टैग, जो हम ऑर्डर लिस्ट यूएल टैग यूज करके जो एंगल ब्रेसेस पे लिया है, एंड देन बैक स्लैश करके जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको हमने क्लोज किया है. एंड हियर वी आर यूजिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स इन अनऑर्डर लिस्ट ऑल्सो. सो दिस वन इज सर्कल, स्क्वायर और डिस्क. तो इस तरीके से हम अनऑर्डर में टाइप्स ले सकते हैं, राइट. तो वी विल सी हियर वन एग्जाम्पल. तो सबसे पहले हमने लिया है एंगल ब्रैकेट में यूएल, देन you have to take a type and then we have to take the attribute. तो type equal to, then हमने वहाँ पे एक attribute लिया है disk. So we have to write the name of that particular attribute in an order list. तो जहाँ पे भी हम लोग an order list ले रहे हैं, तो अगर आपको टाइप लेना है तो आपको वो टाइप का नाम भी देना पड़ेगा. तो जैसे कि हमने यहाँ पे नाम दिया है डिस्क. Then after that we have to write the list item, means after that we have to write the content of an order list. तो यहाँ पे अगेन हमने 3 कंटेंट लिया है, रेड, ग्रीन, ब्लू, एंड देन अनऑर्डर लिस्ट जो है हमने यहाँ पे क्लोज किया. तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट ले सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, राइट. वी विल सी द नेक्स्ट वन, डेफिनेशन लिस्ट. Definition list is created by using the DL tag, right? It comes in pair. First we have to write the open tag and then by using the backslash we have to close the definition list. तो इसका जो tag है DNL, right? तो definition list. Then इसके भी सब tags होते हैं. Their sub tags are DT and DD. तो जहाँ पे भी हम लोग DT लेते हैं that is called a definition term. अगर आप डेफिनेशन लिस्ट लेते हो, अगर आपको उसको सब टैग लेना है, सब हेडिंग देना है, तो वी आर यूजिंग अ DT, दैट इज नेम इज डेफिनेशन टर्म. मतलब हम वहाँ पे डेफिनेशन टर्म दे सकते हैं. अगर उसका भी अगर हमको सब कंटेंट चाहिए तो देयर वी आर यूजिंग अ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. अगर आप कोई भी डेफिनेशन दे रहे हो, अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का टैग का यूज़ कर सकते हैं. तो वी विल सी हियर वन एग्जाम्पल. सबसे पहले हमने टैग लिया है DL, डेफिनेशन लिस्ट. उसके बाद हमने एक कंटेंट लिया है HTML, जो हमने डेफिनेशन टर्म में डाला है, राइट. तो जो हमने ओपन डेफिनेशन ओपन ब्रैकेट में, ओपन टैग में एंड क्लोज टैग में डाला है. उसके बाद उसका जो हमने डेफिनेशन टर्म लिया उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वहाँ पे हमने लिया है DD. DD मीन्स डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन. जो भी आपका डेफिनेशन होगा उसका अगर आपको सब टैग चाहिए, उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वी हैव टू टेक हियर DD. तो हियर हमने एक कंटेंट लिया है HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो यहाँ पे जहाँ पे हमने DT लिया है, जो आपका डेफिनेशन टर्म है HTML आएगा, और HTML का डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिया है HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो उसका सब टैग नीचे आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज अ डेफिनेशन लिस्ट. तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिस्ट एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, राइट. वी विल सी द नेक्स्ट वन इज, now we will see here how to write the example of an order list and the definition list. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है HTML टैग. स्टार्ट करने के बाद we have to write the head and title. में हमने कंटेंट लिखा है list. then we have to
open the body tag. Here then we have to use a heading. हेडिंग टैग में हमने लिखा है ऑर्डर लिस्ट, राइट. अब ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द ऑर्डर लिस्ट, देन हमने टाइप लिखा है और वहाँ पे हमने एट्रीब्यूट लिया है ए. फिर उसके बाद हमने लिस्ट आइटम लिया है, जहाँ पे हमने 3 लिस्ट आइटम लिया है. फर्स्ट आइटम इज रेड, सेकंड वन इज ग्रीन एंड थर्ड वन इज ब्लू. और जो अनऑर्डर लिस्ट है, सॉरी ऑर्डर लिस्ट है, वो उसको हमने क्लोज किया है. देन सेम स्ट्रक्चर में हमने लिया है सेकंड वन अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे फर्स्ट हमने हेडिंग दिया है बाय यूजिंग द हेडिंग टैग अनऑर्डर लिस्ट. एंड देन इन सेम स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज अ अनऑर्डर लिस्ट. तो यहाँ पे हमने टैग यूज किया है अनऑर्डर लिस्ट का, जिसमें टाइप दिया है डिक्स. उसके बाद हमने 3 कंटेन लिया है रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें हमने लिस्ट आइटम दिया है. और सेम पेज में सेम स्ट्रक्चर में हमने अनऑर्डर लिस्ट को जो है क्लोज किया है. उसके बाद हमने सेम पेज में डेफिनेशन लिस्ट भी लिया है. उस डेफिनेशन लिस्ट में हमने उसका टैग यूज किया है फर्स्ट dt. dt में हमने फर्स्ट लिया है html, फर्स्ट लिया है html एंड देन सेकंड लिया है dt. dt में मतलब हमारा जो भी html रहेगा उसका हमारा डिस्क्रिप्शन है, और उसके नीचे हमने जो है dl को क्लोज किया है. तो इसी तरीके से हमने एक ही स्ट्रक्चर में in one structure we have to use a order list, an order list and a definition list. We will see what is the output of this example. So this is our output. तो जिस तरीके से हमने HTML के टैग यूज़ किया है, कौन कौन से किया है, ऑर्डर लिस्ट, एन ऑर्डर लिस्ट एंड द डेफिनेशन लिस्ट. जहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट में यूज़ किया था एट्रीब्यूट ए, तो यहाँ पे देखिए आपके रेड के आगे ए दिख रहा है, राइट. देन ऑटोमेटिकली जो बी है वो ले लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट टाइप लिखा था ए. तो जो टाइप के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा. तो जस्ट हमको वहाँ पे लिखना क्या है, लिस्ट आइटम. तो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट लिस्ट आइटम था ग्रीन और ब्लू, वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली ले लिया. किस तरीके से लिया, बाय यूजिंग द टाइप एंड एट्रीब्यूट. उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमने टाइप दिया था डिक्स. तो यहाँ पे देखो आपका जो कंटेंट जो है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, बट उसके कंटेंट के आगे जो है वो बुलेट्स लगा है. मतलब हमने वहाँ पे टाइप कौन से लिया है, डिक्स का, तो वहाँ पे आपका एक डिक्स बुलेट लगा हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन लिस्ट, तो जहाँ पे हमने DL लिया था और डेफिनेशन आइटम में लिया था HTML और डिस्क्रिप्शन में लिया था HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो इस तरीके से देखो आपका आउटपुट आ रहा है. फर्स्ट हेडिंग इज HTML और उसका डिस्क्रिप्शन है HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो दिस इज द एग्जाम्पल of list, how to write the order list, an order list and the definition list. Now we will see the second example, how to write the order list and order list, right. अब हमको यहाँ पे order list and an order list एक कैसे लेते हैं ये तो क्लियर हो चुका है. बट अगर हम order list एक बिटवीन नंबर, मतलब एक बीच में जो नंबर है अगर वो लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे. बीच का नंबर मीन्स मान लो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10 और हमको जो ऑर्डर लिस्ट है हमको स्टार्ट करना है 10 से. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 40 से. अगर हमको आपकी कंटेंट जो है वो 40 से स्टार्ट करना है, तो बाय यूजिंग द टैग हाउ वी कैन यूज दिस टैग्स हियर. तो वो टैग हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू राइट द हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग एंड एक पैराग्राफ दिया है. बाय डिफॉल्ट द न्यूमरेटर इज एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1. तो ये हमको सभी को पता है कि अगर डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं लेते हैं या कुछ भी टाइप नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट फ्रॉम 1. तो जो आपका नंबरिंग है ऑर्डर लिस्ट का वो 1 से ही स्टार्ट होगा. बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे एट्रीब्यूट देते हो तो वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से ही आपके जो कंटेंट है, मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, वो स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक नंबर दिया है, इट स्टार्ट फ्रॉम 40. तो ऑर्डर लिस्ट लिया है, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है 40 का, और जिसमें हमने टाइप दिया है स्टार्ट. तो स्टार्ट इक्वल टू 40. जो और स्पेसिफिक जो नंबर दिया है वो हमने कोटेशन में लिया है, स्ट्रिंग में लिया है, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द कंटेंट ऑफ द ऑर्डर लिस्ट. और उसके बाद जो ऑर्डर लिस्ट है वो हमने क्या किया है, क्लोज किया है. उसी के नीचे हमने एक अनऑर्डर लिस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है, बट इट स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर, ठीक है. तो जिसमें हमने नंबर दिया है 40. तो बट उसके आगे भी हमने एक टाइप दिया है, मतलब वहाँ पे एक हमने एट्रीब्यूट लिया है रोमन नंबर कैपिटल I, राइट.
तो वहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, विच वन इज रोमन नंबर का भी यूज़ किया है और एक पर्टिकुलर नंबर का भी यूज़ किया है। मतलब ये एग्ज़ाम पे अगर हम रोमन नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं 40 से, तो वो किस तरीके से स्टार्ट होगा। सो देयर वी आर यूजिंग टाइप ऑल्सो एंड स्टार्ट ऑल्सो। तो वहाँ पे हमको दोनों भी टाइप लेना है, कौन कौन से, टाइप भी लेना है और स्टार्ट भी लेना है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द कंटेंट, फिर उसके बाद आपको जितने भी कंटेंट्स लेना है वी हैव टू राइट दैट कंटेंट एंड देन वी हैव टू क्लोज योर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो उसी के राइट साइड में देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है और आउटपुट में देखिए आपको स्टार्ट जो हो रहा है हमारा कंटेंट 40 से। ठीक है, 40 से क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है 40 से। इट इज़ अ ऑर्डर लिस्ट बट इट इज स्टार्ट फ्रॉम 40। उसके बाद जो 41 42 है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है और जितने भी आपने कंटेंट्स लिए हैं, राइट। देन उसी के नीचे हमने अनऑर्डर लिस्ट का एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमने स्टार्ट किया था रोमन नंबर से, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन दिया था कि स्टार्ट जो रोमन नंबर है वो स्टार्ट करें 40 से। तो 40 से स्टार्ट किया है और उसके बाद उसने 41 एंड 42 जो रोमन नंबर है वो ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक नंबर दे के भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।